جو علی شیر خدا نے ہر میدان میں لگایا ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، آواز بلند سلوات۔ وقت کے دامن میں بھی گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ میں آپ کے سوچنے سے پہلے ممبر چھوڑ دوں گا۔ کروڑوں حمد و ثنا اس خالق کی کہ جس خالق نے ہمیں گمراہی کے اندھیرے سے بچانے کے لیے 14 ستاروں کی روشنی عطا کی، اور کروڑوں درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبی بندوں پر جنہوں نے ایک وحشی کو انسان بنایا۔ اگر کوئی انسان نظر آیا تو اسے مسلمان بنایا، اگر کوئی مسلمان نظر آیا تو اسے صاحب ایمان بنایا، اگر کوئی صاحب ایمان بھی نظر آیا تو اسے سلیمان بنایا۔ اگر کوئی صاحب ایمان، کچھ بندے خاموش بیٹھے ہیں، میں جملہ تبدیل کر دیتا ہوں، اگر کوئی ان کے دروازے پر بے زاد آیا تو وہ ابوذر بن کر گیا، اگر کوئی ان کے دروازے پر بے زاد آیا تو وہ مقداد بن کر گیا، اگر کوئی ان کے دروازے پر مجبور آیا تو وہ مختار بن کر گیا، اگر کوئی ان کے دروازے پر گنہگار بھی آیا تو وہ خالی نہیں گیا، وہ علیہ السلام بن کر گیا۔ اتنا کریم ہے یہ گھرانہ، بغیر کسی تمہید کے میں نے بات کا آغاز کر دیا ہے۔ پوری دنیا میں جو انسان اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ کون حسین ابن علی؟ میں کہتا ہوں خدا کا شکر ہے کہ اس نے تکفیریوں کو یزید دیا، ہمیں حسین عطا کیا۔ میں کہتا ہوں تمہیں تمہارا پیر مبارک، ہمیں ہمارا بادشاہ مبارک۔ تم اپنے پیر کا ذکر کرو، ہم اپنے پیر کا ذکر کریں گے، لیکن ایک فرق رہے گا، جس کا ذکر تم کرو گے پھر اس کی ماں کا کردار بھی بتانا پڑے گا، پھر اس کی ماں کا کردار بھی بتانا پڑے گا۔ کون ہے حسین؟ اسلام کے حقیقی چہرے کو حسینیت کہتے ہیں، کفر کی بدنما تصویر کو یزیدیت کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی، روڈوں اور دیواروں پہ کافر کافر لکھنے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا، کافر وہ ہوتا ہے جسے قرآن میں اللہ کافر کہتا ہے۔ نعرہ حیدری! کافر وہ ہوتا ہے جسے قرآن میں اللہ کافر کہتے ہیں۔ اسلام کے حقیقی چہرے کو حسینیت کہتے ہیں، کفر کی بدنما تصویر کو یزیدیت کہتے ہیں۔ شام کی طریقی یزید ہے، نور مبین حسین ہے، سنگ ثقیفہ یزید ہے، کعبے کا نگینہ حسین ہے، اسلام کی دستار حسین ہے، کفر کا دھبا یزید ہے۔ بلکہ میں اس طرح کہوں، جس کے گھر شیطان پلے وہ یزید ہے، جس کے گھر قرآن پلے وہ حسین ہے، جس کے گھر قرآن پلے وہ حسین ہے۔ جو شیطان کا مکان ہو وہ یزید ہے، جو جنت کا مکین ہو وہ حسین ہے، جو جنت کا مکین ہو وہ حسین ہے۔ جو معصومہ کی بھول ہو تو یزید بنتا ہے، اگر فرزند بطول ہو تو حسین بنتا ہے۔ اگر فرزند بطول ہو تو حسین بنتا ہے۔ آج کل جتنے بھی یہ یزید کی حمایت میں نکلے ہیں، ریلیاں صحابہ کے نام پہ حمایت یزید کی، سنی مجمع بھی تشریف فرما ہے، شیعہ مجمع بھی تشریف فرما ہے، علل ہو سکتا ہے لائف چل رہی ہو۔ علل اعلان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی ایک بات یاد رکھ لینا، کتا نہلانے سے کتا پاک نہیں ہوتا، بلکہ اس کو نہلانے والا خود نجس ہو جاتا ہے۔ یزید تو لعنتی تھا ہی تھا، اب یہ لعنت کا بندہ تمہارے گلے میں بھی پڑ گیا ہے۔ یزید تو لعنتی تھا ہی تھا۔ اگر تم سوچتے ہو کہ صحابہ کے نام پہ ریلیاں نکالو گے، حمایت یزید کی کرو گے، میرے بھائی ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، سب رسول کے سچے صحابہ ہمارے لیے محترم ہیں، لیکن اگر آپ سوچ رہے ہو کہ ہم صحابہ کی آگے ریلیاں نکال کے یزید زندہ باد کے نعرے لگائیں گے تو یہ ہم شیعوں کا اٹل فیصلہ ہے کہ یزید کل بھی لعنت اللہ تھا، یزید آج بھی لعنت اللہ ہے۔ یزید کل بھی لعنت اللہ تھا، یزید آج بھی لعنت اللہ ہے۔ کچھ بندے پریشان تھے کہ وہ کیسے مفتی تھے جنہوں نے قتل حسین کا فتویٰ دیا تھا، وہ ایسے مفتی تھے
जो आज यजीद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अगर तुम सोचते हो कि हम रैलियां निकालेंगे, हम बड़े बड़े जलसे करेंगे, शिया डर जाएंगे, शिया जुलूस नहीं निकालेंगे, शिया मातम नहीं करेंगे, शिया मजलसे नहीं करेंगे, मैं कहता हूँ नहीं मेरे भाई, बड़े बड़े तेरे बाप मर गए, बड़े बड़े हुक्मरान मर गए, बड़े बड़े बादशाह गुजर गए, लेकिन अली कल भी जिंदा था, अली अब भी जिंदा है। अली कल भी जिंदा था, अली अब भी जिंदा है। तुम खत्म करोगे सजादारी को, मर गया तुम्हारा मुतवक्किल, मर गया हज्जाज इब्ने यूसुफ, मर गए तुम्हारे बड़े बड़े हुक्मरान, मर गए सारे तुम्हारे बादशाह। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आप भी जिंदा है, क्योंकि ये अल्लाह का फैसला है कि जाल हक को वज़हकल बातिल, जब हक आ जाता है तो बातिल मिट जाता है, जब हक आ जाता है तो बातिल मिट जाता है। मेरे भाई मैं कहूँगा कभी भी आपकी जहन की तहलील पर कभी भी ये ख्याल दस्तक ना दे कि आजादारी आपकी वजह से जिंदा है, कि आजादारी आपकी वजह से बाकी है। नहीं मेरे भाई, बल्कि हम आजादारी की वजह से बाकी है, क्योंकि हम ना थे आजादारी थी, हम हैं आजादारी है, हम ना होंगे आजादारी होगी, क्योंकि ये अल्लाह का फैसला है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। बल्कि अगर मैं इस तरह कहूँ कि अल्लाह कह रहा है अपने बंदे को कि तुम मेरे जाकिर बन जाओ, मैं तुम्हारा जाकिर बन जाऊंगा, तुम मेरे जाकिर बन जाओ, मैं तुम्हारा जाकिर बन जाऊंगा। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में अगर आप पूरी कायनात में देख ले, कोई ऐसा नहीं है कि जिसने ऐसा जिक्र किया हो। मैं मिसाल देता हूँ, जिसने ऐसा जिक्र किया हो पूरी कायनात। मैं बोल रहा हूँ, आवाज निकल रही है, आवाज फेफड़ों से निकलती है, फेफड़े सीने में होते हैं। एक ऐसा वक्त आया, मैं मसैल का नहीं फजल का जुमला पढ़ रहा हूँ, एक ऐसा वक्त आया कि सीना करबला में था, सारे लोग नेज़ा पर था, दुश्मनों के हजूम में ऐसा अल्लाह 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 कर दिया कि अल्लाह का भी वादा हो गया, हुसैन तूने दुश्मन के हजूम में कहते हुए साथ से अल्लाह अल्लाह किया, अब मुझे अल्लाह का भी वादा हो गया कि क़यामत तक हर ज़बान से हुसैन 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 होता रहेगा। क़यामत तक हर ज़बान से हुसैन 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 होता रहेगा। करबला वो सरजमीन है जहाँ फितरत भी बदल जाती है। फितरत तो हम समझते हैं ना कि फलां बंदे की ये फितरत है, फलां बंदे की ये फितरत है, फलां बंदे की ये फितरत है। करबला वो सरजमीन है जहाँ फितरत भी बदल जाती है। अभी तक कुछ बंदे नहीं समझे, मैं मिसाल देकर वादे करता हूँ। फर्ज कर लेंगे दो बंदे प्यासे हैं और इतनी प्यासे हैं कि अगर उनको पानी ना मिले तो वो मर जाएंगे। अब दोनों में से एक को पानी पिला दो, एक को पानी ना पिलाओ। फितरत क्या कहती है, कौन मरेगा कौन बचेगा? फितरत कहती है जो पानी पिएगा वो बच जाएगा, जो प्यासा होगा वो मर जाएगा। फितरत यही कहती है ना, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोले आप। फितरत कहती है जो प्यासा होगा वो मर जाएगा, जिसको पानी मिल जाएगा वो बच जाएगा। लेकिन करबला में ये फितरत तब्दील हो गई। जो पानी पीते रहे उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है, जो प्यासे थे वो कल भी जिंदा थे, वो आज भी जिंदा है। मोहम्मद वाले मोहम्मद जो पानी पीने वाले थे उनका नाम कोई नहीं लेता, जो प्यासे थे वो कल भी जिंदा थे, वो आज भी जिंदा है। क्या है करबला? जहाँ तीर हार जाए, जहाँ तलवारें हार जाए, जहाँ लहू जीत जाए उसे करबला कहते हैं। जहाँ लाखों हार जाए और 72 जीत जाए उसे करबला कहते हैं। क्या है करबला? अगर आपकी समाज का मेयार इतना ही बुलंद है तो मैं जुमला कह देता हूँ, जहाँ हुर्मिला हार जाए, असगर जीत जाए उसे करबला कहते हैं। जहाँ हुर्मिला हार जाए, असगर जीत जाए उसे करबला कहते हैं। मैं फज़ैल पढ़ रहा हूँ, मसैल में नहीं आ रहा, आपकी आंखों में आंसू आ गए कि जब बीबी यजीद के दरबार में आई, बीबी के हाथों में रस्सियां थी ना, जब बीबी यजीद के दरबार में आई, बीबी ने कहा ओ यबनतुल का, ओ हमारे आजाद करदा गुलाम की औलाद। जब बीबी ने ये कहा ना तो पूरे दरबार में ऐसी खामोशी हो गई कि किसी को पता ही नहीं चल रहा था कैदी वो है या कैदी ये है।
बाबा ऐसे गरजी बाबा के लहजे में बीबी कि पूरा दरबार गरज के रह गया। बीबी ने कहा, ओ शबनतुल का, हमारे आजाद करदा गुलाम की औलाद, तुम भी कहोगे मेरे भाई का देख लो, मैं वादा करके जा रही हूँ, जितने जुल्म करने हैं हमारे ऊपर कर लो, जितने सितम करने हैं हमारे ऊपर कर लो, जो सितम की बिजली गिरानी है हमारे ऊपर गिरा दो, लेकिन मैं वादा करके जा रही हूँ, वो यजीद सुन ले कि कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, मेरा हुसैन अब भी जिंदा है। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, मेरा हुसैन अब। हो सकता है किसी के ज़हन में सवाल आए कि बीबी ने तो कहा था यजीद तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन फिर आज ये यजीद के नाम पे रैलियां कैसे, यजीद जिंदाबाद के नारे कहते, फिर भी मानने वाले तो नजर आ रहे हैं। मैं इतना सा जवाब दूंगा भाई कि जिस तरह ये हिमायतें कर रहे हैं आपको नजर तो आ रहा है, रैलियां सहाबा के नाम पे निकालते हैं, हिमायत यजीद की करते हैं। बस मैं इतनी कहूंगा कि होती नहीं इस तरह खुफिया हिमायतें, होती नहीं इस तरह खुफिया हिमायतें। खुल के जरा सामने आ, हिम्मत मजीद रख, मैंने हुसैन रख दिया है अपने पिता का नाम, बेटे का नाम बरमला, तू भी यजीद रख। तू भी यजीद रख। खुदा की कसम ये मुफ्ती मुल्ला मर जाएगा, कभी भी बेटे का नाम यजीद नहीं रखेगा। क्यों? जो हुसैन ने मातमी को आली बना दिया, फल लग सके न जिस पे वो डाली बना दिया। काफिर भी नाम रखते नहीं यजीद, हुसैन ने यजीद को गाली बना दिया। हुसैन ने यजीद को गाली बना दिया। इतनी बड़ी अजमतों का मालिक हुसैन, जितनी ही फजीलत थी उससे कहीं ज्यादा सितम दिए हैं नाने की उम्मत ने। आज 5 मुहर्रम की रात है, मेरा दिल है मैं सफीर हुसैन की मुसीबत के 2 जुमले आपको सुनाऊं। ज्यादा लंबा मसला भी नहीं पढ़ना, बस 2 जुमले पढ़ के मिंबर भाई के हवाले वक्त के दामन में भी गुंजाइश नहीं है। अजादारों, जब मुस्लिम को सारे छोड़ के चले गए, कूफा की गलियों में मुस्लिम जब अकेले थे, तो एक तवा नामी औरत जो मोमिना औरत थी, उसके दरवाजे के सामने आकर मुस्लिम बैठ गए। ये औरत, इसका एक बेटा था जो शराबी था, नशई था, उसको देखने की गरज से बार बार ये दरवाजे पर आ रही थी। जब एक बार दरवाजे पर आई, देखा तो कोई गरीबुल वतन बैठा है। इसने पूछा, मैं तफसील में नहीं पढ़ता, जब इसे पता चला कि ये हुसैन का सफीर मुस्लिम है, तो ये उसे लेकर अपने घर चली गई। सारी रात इबादत करते रहे मुस्लिम इब्ने अकील। जब सुबह का वक्त हुआ तो मुस्लिम ने कहा, तवा मुझे इजाजत दो, आपने मेहरबानी की, आपका शुक्रिया। तवा ने कहा, मौला दुश्मन जमाना है, फौज आपको ढूंढ रही है, मैं तो कहूंगी मौला आप बाहर ना जाइए। मुस्लिम ने कहा, तवा मैं जानता हूँ दुश्मन जमाना है, फौज भी मुझे ढूंढ रही है, लेकिन तवा ये मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती कि ना हमारा लश्कर आपके घर में दाखिल हो जाए। मैं कहूंगा मौला मुस्लिम आपकी गैरत पर सलाम, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक आम मोमिना औरत के घर में कोई नामहरम लोग दाखिल हो जाए। मौला आते ना जरा शाम गरीबा की रात, उस वक्त देखते जब पूरी फौज ज़ैनब के खैमों में आ गई, जब सारा का सारा लश्कर खैमों में आ गया, ज़ैनब एक खैमा से दूसरे खैमा में जाती, इतनी कहती थी, सज्जाद बेटा इतना बता दो कि खैमा में जल के राख होना है या दूसरे खैमा में चले जाए। रोने वाले अज़ादारों, बस खत्म कर रहा हूँ, ज्यादा लंबा नहीं पढ़ना। जब मुस्लिम घर से बाहर निकले, इधर से अपने रियाद की फौज आ गई। मुस्लिम ने मुकाबला भी किया, मुकाबला करते रहे। जब फौज को पता चला ना मुस्लिम हमसे हारने वाला नहीं है, तो इन्होंने एक चाल चली, एक गड़ा खोदा गया, उस गड़े में मुस्लिम जनाब मुस्लिम को धोखे के साथ गिराया गया, कैद करके ले आए इब्ने ज़ियाद के दरबार में। एक सिपाही ने कहा, मुस्लिम हमारे अमीर को सलाम करो। मुस्लिम को जला लाया, ऊपर देख के कहता है, कौन सा अमीर? मेरा एक ही अमीर है जिसका नाम हुसैन इब्ने अली है। ये सदा सुनी तो होगी जंगलों में, हुसैन इब्ने अली में, शायद कहा भी होगा, मुस्लिम तुमने मुझे दुश्मनों के हजूम में अमीर कहा है। मुस्लिम याद रखना, क़यामत तक लोग मुझे गरीब कहेंगे, तुम्हें अमीर कहेंगे।
रोने वाले अज़ादारों, जब इस कमीने को पता चला ना कि मुस्लिम ने मुझे सलाम नहीं किया, ये गुस्से में आया, इसने हुक्म दिया कि मुस्लिम को दारुल अमारा पे ले जाओ, सर कलम कर दो, मुस्लिम को दारुल अमारा से धक्का दे दो। मैं नहीं पढ़ता कि धक्का कैसे दिया गया। जब मुस्लिम को धक्का दिया, मुस्लिम मुंह के दर दारुल अमारा की छत से नीचे आए। आपके इलाके का भी रिवाज होगा, अगर कोई परदेसी मर जाए तो ऐलान होता है कि कोई परदेसी मर गया है, तो कोई कफन का इंतजाम करता है, कोई चारपाई ले आता है, कोई जनाजे का इंतजाम करता है। लेकिन कुर्बान मुस्लिम की गुर्बत पर जब मुस्लिम दारुल अमारा की छत से नीचे गिरे, कूफी हफ्ते भी थे, कहते थे रस्सियां ले आओ। जब रस्सियां लाई गई, रस्सियां बांधी गई मुस्लिम के पांव में। कभी कूफे का कोई बाजार, कभी कूफे का कोई बाजार, जब कूफे के बाजार फिर गए, बस आखिरी जुमला पढ़ रहा हूँ। जब कुछ अरसे के बाद इसी दरबार में जनाबे सज्जाद आए, तो एक कूफी ने कहा, मौला आप भी हाशमी हो, मुस्लिम भी आया था, वो भी हाशमी था, लेकिन जब मुस्लिम आया था वो सर उठा के खड़ा था। मौला सज्जाद आप सर झुका के क्यों खड़े हैं? मौला सज्जाद कहते हैं, जालिम तूने इंसाफ नहीं किया, जब मुस्लिम आया था तो वो अकेला था, मेरे साथ देख अली की बेटियां कैद है, मेरे साथ मेरी माँ कैद है। अल्लाह